Hello guys, in this video I am going to discuss how to heal and strengthen your joints if you are suffering from arthritis. Okay, in this video the focus is on mobility work, low impact movements and anti-inflammatory tips to reduce pain and improve function of the joints gradually. Okay, the first tip to heal is stay active with mild और लाइट एक्सरसाइजेस. ओके, जब आप मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो आपका जॉइंट लुब्रिकेट्स होता है एंड इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथनिंग, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू जॉइंट्स. ओके, सो डू लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस लाइक स्विमिंग, cycling, walking. Okay, next step is apply heat and cold packs. Okay, if you are suffering from stiffness, joint stiffness, then do heat therapy. If you don't have heating pads, then you can use warm towel. Okay, it reduces stiffness and relax your muscle. Okay, and if you are suffering from inflammation and pain, then use ice packs. Okay, it will reduce your joint soreness. Okay, third tip is include anti-inflammatory diet. Okay, focus on anti-inflammatory diet, include like omega 3s, fatty fish, walnuts and ginger, berries or turmeric. Avoid highly processed foods, fried items, sugar and red meat in excess. Okay, and also consume walnuts. Okay, so the fourth tip is stay hydrated. If you are hydrated well, then this will lubricate your joint and improves your inflammation by reducing, by eliminating the toxins from the joint. Okay, fifth tip is lose excess weight. You can be very shocked to hear that if, especially if you have knee arthritis and hip arthritis, to reducing 1 kg of extra fat from the body, you can approx 4 kg. With 1 kg you can approx 4 kg, you can remove approx 4 kg of stress, 4 kg of extra stress from your joint. Okay, so every 1 kg of weight loss from your body relieves 4 kg of extra pressure from your knees, from your hips, from your joints. Okay, I'm going to discuss some joint friendly and best exercises to relieve pain and improve. So the first we will talk about knee and hip joint. For knees and hips we will do seated leg extension, both sides. Third we will do glute bridges or hip extension. Okay, for hands and fingers we will do fist to fan. In this, first we do this and then we do like this. Okay, fist to fan stretch. Then we will do lift stretch. In lift stretch we will place our hand on a surface and then we will do one by one this. Sorry, this. In this you will lift one by one your finger. Okay, at a time, one at a time. Okay, like this. Place on the surface your hand, then lift one finger, then other finger. Okay, do with each finger. Okay, इसके साथ ही आपने ग्रिप स्ट्रेंथनिंग करनी है. आपने बॉल को इस तरीके से होल्ड करना है. एक बॉल होती है स्ट्रेचिंग के लिए, या नॉर्मल बॉल भी ले सकते हो आप, जो जिसे आप पिंच कर सको. देन ये करना है, देन बैक, ये एंड बैक. ओके, फॉर शोल्डर्स आपको करना है बॉल बॉक्स. सेकंड करना है पेंडुलम स्ट्रेच. इन पेंडुलम स्ट्रेच एक हाथ आपने अपना टेबल पे रखना है. ठीक है, वन हैंड से आपने सपोर्ट लेना है टेबल पे
लीन हो जाना है, बेंड होना है, देन सेकंड हैंड से आपने सर्कल बनाने हैं, ठीक है, सेकंड हैंड से सर्कल बनाने हैं, ओके। एंड थर्ड आपका शोल्डर के लिए रहेगा आर्म सर्कल्स, बोथ दी हैंड, इसमें बोथ दी हैंड आपने करने हैं। आर्म सर्कल्स में आप आगे रोटेट करते हो, देन पीछे रोटेट करते हो, ओके। पेंडुलम स्ट्रेच में आपने लीन करना है एक हैंड से और सेकंड हैंड से आपने सर्कल करना है, ओके। फॉरवर्ड सर्कल ही करने हैं आपने, बैकवर्ड नहीं जाना है। फॉर एंकल्स वी विल डू एंकल पंप्स एंड एंकल पंप्स करते कैसे हैं, जैसे आप काफ स्ट्रेच करते हो ना, सेम उसका रिवर्स करना है आपने। अपने टोस पहले फ्लैट रहना है, आपने फ्लैट अपने फीट को रखना है फ्लैट, एंड आगे से इस तरीके से टोस को रेज करना है, बैक रोज रेज टोज देन बैक, रेज टोज देन बैक, ओके। फ्लैट रहेंगे आप, बिल्कुल फ्लैट रहेंगे फीट से, देन आगे से टोज को सीटेड या स्टैंडिंग पोजीशन में आपने टोज को ऊपर की साइड पुल करना है, ओके। ऊपर पुल करना है स्लाइटली, देन बैक पुल देन बैक। और साथ ही साथ जैसे हम अल्फ़ाबेट बनाते थे ना बचपन में, इन चाइल्डहुड हम अल्फ़ाबेट बनाते थे, जैसे ए जेड लाइक दिस, तो ये अल्फ़ाबेट आपने अपने लेग से बनाने हैं, ओके। एंकल मोबिलिटी के लिए ये आपने करना है, आपने ए टू जेड अल्फ़ाबेट ट्राई करने हैं और अपने लेग से बनाने हैं, ठीक है। बिग टो से, बड़े सॉरी अंगूठे से, टो से, ठीक है। अपने फीट के टो से आपने अल्फ़ाबेट बनानी है, ओके। के साथ ही साथ विद दिस आपने फ्लेक्सिबिलिटी भी कम करना है अपनी, ओके। वर्क आल्सो ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट इसके सिम्टम्स और इम्प्रूवमेंट जल्दी हो सके। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी में आपने क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है वो मैं बात कर लेता हूँ, एक बार मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने कैट काउ स्ट्रेच करना है, ठीक है। जेंटल स्पाइनल रोटेशन करना है और साथ ही साथ काफ को स्ट्रेच करना है, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है। और इन सब के साथ कैट काउ आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच और काफ स्ट्रेच, आपका जनरल रोटेशन ऑफ द स्पाइन, एंड साथ ही साथ आपने नेक रोल्स करना है, ओके। सो ये प्रोग्राम था आपका जॉइंट फ्रेंडली एंड फॉर आर्थराइटिस। एंड कुछ प्रिकॉशंस भी रखने हैं आपने। अगर शार्प पेन होता है किसी मूवमेंट को करते हुए, किसी प्रकार के भी मूवमेंट को करते हुए, चाहे जिम में हो आप या आप होम वर्कआउट कर रहे हो, तो उस मूवमेंट को अवॉइड करना है completely, okay। Sharp pain, if you are feeling sharp pain, then avoid that movement completely, okay। High impact exercises like jumping jacks टाइप जंपिंग मूवमेंट्स आपने नहीं करने हैं। और साथ ही साथ आपने डाइट पे ध्यान रखना है, अपने हाइड्रेशन पे ध्यान रखना है, ओके। और आप योगा पोजेस भी कर सकते हो लाइक ताइची फॉर स्ट्रेचिंग। एंड लास्ट पॉइंट आपका रहेगा यूज सपोर्ट टू प्रिवेंट फॉल्स, ओके। चेयर और आप किसी बेंच का सहारा भी ले सकते हैं इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सिवियर आर्थराइटिस, ओके। योर बैलेंस कैन बी compromised, so in order to prevent or reducing fall, to escape from fall injury, you can use this technique, okay। So that's all for today. We will meet again in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care, love you all, be victorious, thank you।